Good afternoon, all. I request you all to please switch on your cameras so that we can see each other. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. It's a pleasure to see the new students. I, Dr. Anu Kande, welcome you to the virtual interaction session of our new batch 2021, organized by Sri Vaishnav Institute of Fine Arts. I now invite Architect Professor Vishal Yadi, Coordinator, Sri Vaishnav Institute of Fine Arts, and Director, Sri Vaishnav Institute of Architecture, to address the audience. Yeah, thank you so much, Anu ma'am. I would like to welcome all the students of Fine Arts. Uh, you have already attended so many sessions from last 3 days. Now you know all information about the university. You are acquainted with the system of the university. You know how examination system is. You know how library system is. You know how computing facilities are. So welcome to SVVV. Just few things. Remember only one thing: there is no shortcut to the success. We have to work hard. Number one. Number two, please attend all sessions carefully, time to time, so that you can develop interest. If you do not attend, then you will not develop interest. So please attend all sessions carefully and submit all your assignments within time regularly. That's the key of success. So I wish you all the best and hope you will be a great artist one day. Thank you so much. Thank Thank you, you, sir. sir, for the inspirational words. Now I take the opportunity to share with you glimpses of Sri Vaishnav Institute of Fine Arts, our journey till now. I hope the slides are visible. Yes, ma'am. Yes, visible. Slides are visible. Okay, sir. Thank you, sir. Sri Vaishnav Institute of Fine Arts, we were founded in 2015. The institute admitted its first batch in 2017. And since then, we have progressed to offering degrees in bachelor's, master's, as well as PhD to the aspiring fine art students of this region. The major degrees we offer again are Bachelor's in Fine Arts, BFA in Animation and Painting Specialization, Masters in Fine Arts again in Animation and Painting Specialization, and PhD degree. This is a glimpse of the fun days before COVID. We were there with the kids, all the students. Our team comprises of our head, architect Professor Vishal Yadi sir, myself, Dr. Anu Ukande, Mrs. Alka Jha, Mr. Shivendra Tumram. Apart from us, many other faculty members will be teaching you. There are many subjects that are common uh, in coursework, and starting with the new scheme of new education policy. We have a lot of other subjects you can offer or opt for. So there'll be many more faculty members, but we are the core team of fine arts. Many other events, special events are organized by our institute. They are our pride. Uh, One of the major important annual event we have is Vishwankan. Another important event is Kalakriti and Sanrachna, and other workshops are conducted by world famous art experts for the students. So I'll just share some glimpses of Vishwankan with you. So this was the pre-COVID scene of Vishwankan, full of energy, full of art, a lot of painting, a lot of activity.
The first Vishwankan was held in January 2018, and the guests included very famous artists, Mr. Shrenik Jain and Mrs. Meera Gupta. They interacted with the students, they gave demonstrations. This is a glimpse of the inaugural function before we started with the hands-on painting workshop. This is Meera ma'am and Shrenik ji. Our Honorable Vice Chancellor, sir, as you can see, he's standing in the center. He always supports the ventures by Fine Arts Institute. So these are some of the glimpses of the closing ceremony, the valedictory ceremony of Vishwankan. Here you can see we've been having Vishwankan workshop for since 2018 till now every year. Although this time we had it online because of COVID. So hopefully soon we will have the offline sessions as well. So this is another glimpse of the activity of the second Vishwankan. The press releases. The Pali session is going on. Dipali? 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 So this is a press release of the event. We had senior artist Mr. Prem Singh, and he gave a demonstration. He's from Delhi. And we had a sculpture demo as well. This is by a very famous award-winning artist, Mr. Prakash Patidar. So here, our Honorable Vice Chancellor, sir, he was present in the workshop and he appreciated the work by students and he interacted with the senior artists. This was again in 2020, Vishwankan. This was, we had invited very senior artist who has received the state award for painting, Mr. Bhav sir. And also we had the watercolor artist. He's a very famous artist from Ahmedabad. So we had Mr. Bipin Patel and live demos were given for these various techniques in painting. This was the team, the students as well as the faculty and the invited guests. Then we have Kalakriti, as I already mentioned. It's again an annual event, but the difference is that in Kalakriti we have competition. So earlier Kalakriti had a very broad spectrum of portrait competition, poster making competition, painting competition, Rangoli competition, calligraphy competition, and many more such categories and many age groups. Now we have Kalakriti, we still have it, but it's online now. So these are the glimpses of the first Kalakriti in 2018. Now what we have is the online competition, which is basically a poster making competition. And this year also, we are having Kalakriti on 9th. We will be declaring the results. So the topic is health and wellness, and all the students are most welcome to participate in Kalakriti. I will share the poster with you. These are the judges. So as you can see, there was a lot of activity, a lot of participation, and enthusiastic students painting away energetically. So that was Kalakriti before COVID. Hopefully, we'll have more sessions like this in the future. Sanrachna is a very important event in the Institute of Fine Arts, and this is the annual art exhibition. So we will have Sanrachna in December this year. This is a glimpse of Sanrachna. And again, our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor Sir, is very supportive. So we had the inaugural session in Art Gallery, and these are the students' work that were displayed in Sanrachna. This is the team, the students with the teachers. Some of the students had gone away to eat, तो वो लोग थोड़ा missing हो गए हैं. Then we already after COVID started, we started having more of online sessions where senior artists, very famous artists, they give guidance,
they share their experiences online. So this was during the lockdown that we invited very senior artist Mr. Prabhakar Kolte from Mumbai online, and he, if you do find his work online, if you search for his work online, his paintings are very very famous, and he sells in crores. So he's an internationally famous artist. He guided the students, he shared his experiences, inspired the students online. The other guest speaker we had online was Dr. Indrapramit Roy from Baroda, MS University, Baroda. So he's a very prominent speaker and artist, and he also shared his experiences and opinions with the students. So this, with this short brief glimpse of our institute, I now invite Mrs. Alka Jha to please address the audience. Hello everyone, good afternoon. I'm Alka. Good afternoon, ma'am. I'm uh, I participated activity and technical skills. It shows up a student of progress. Art is diverse range of human activity, creating beautiful performing artists and expressing the artist's dignity, mind and also arms to express technical properties, beauty, emotional power and conceptual ideas. Fine art refers to visual art. Visual art is main component of the human experience, affecting the world and the time in which it is. Art can help us understand our history, our culture, our life, and experience of others. Three classical branches, three classical branches of visual art are painting, sculpture, and agriculture, architecture. Fine art differs from decorative art or craft that, while beautiful Ma'am, curves you're not audible. are audible. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible, but your voice is not coming properly. Okay, It's breaking, okay. and the background sound is also coming. Fine art refers to decorative art or craft that while creativity serves to practical purpose. Fine art innovation creative experience and does not have to be is meant to convey an idea or an emotional or explore social community. The fine arts Ma'am, are you are not audible. Please uh, check your mic or something. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. The fine arts also provide learners with non-academic benefits such as promoting self-esteem, promotion, aesthetic welfare, culture, export, activity improve emotional expression as well as social harmony and experience of diversity. Fine arts work across the diversity of medium. Artists sell their works to museum, art galleries, to direct to customer based on talent and reputation built in market, and even can to job, advertising agencies, newspaper, and any architect, interior designer, etc. There is a lot of scope and sky is not the limit. Thank you. Thank you, Alka ma'am. Now I invite Mrs. Ruchi Agrawal. She's a very senior and famous artist,
and she's also pursuing PhD with the Sri Vaishnav Institute of Fine Arts. I invite Mrs. Ruchi Agrawal to have an engaging session with the students. Thank you, ma'am. Thank you so much. Just give me a minute. I'll just set my camera also. तो अब हम आपका एक एक्टिविटी सेशन करने वाले हैं. तो आपको एक लिस्ट दी थी हमने कि कुछ A4, A3 साइज के शीट्स आप तैयार रखिए, कुछ कलर्स जो भी अवेलेबल हों, ब्रशेस, some string or maybe some blades or knife or potato, ये सब चीज़ें. तो whatever you have with you, we'll work with that. मैडम आपको डेमो देंगी and you can go ahead and also make the activity with us and then share what you've made. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. I hope you are all having some material with you. Yeah, ma'am. Okay, then take some colors and brushes and a mug of water and some tissues or some cloth for. Okay. So we'll start with stippling. Actually, there are various techniques where you can you can apply them with mixed medias, and you can use them with various styles and brushes. These techniques can be you can make them with n number of things. We can start with some brushes. Very simple styles. We'll do a brush technique that is called stippling. Stippling, if you know about the pointillism, have you heard about pointillism? No, ma'am. No, okay. Impressionism or something, those kind of isms from various times in paintings and fine arts and other mediums. No. They will learn. अब हम सिखाएंगे. Sure. You have come to a very esteemed, actually, university. So you're going to learn very good things, and your mentors are excellent. So let's start with stippling. If you switch on your cameras, I'll be able to know if you're doing something with me. Okay. So stippling is a technique with which we use with small dots. You can use them for shading purposes and to create perspectives also. So we'll start with little darker shades. I'm taking a brown color here. And I'll be just introducing you these techniques because I want to show you more maximum of the techniques, so you can do those styles and do it for yourself. So stippling is a kind of art where you start with a point kind of thing. Can you see my this paper? Is it visible? Okay, if I do something, will you be able to see? Yes, ma'am. Okay. So I'm just using the tip of my brush. This is a very fine brush, a round brush. So I'll be just kind of using some dots kind of thing on my paper. This kind of thing. So this is called stippling. अब आप इसको जितना dense करेंगे, जितना ज़्यादा variations डालेंगे इसमें आपके colors के, you will get images from them. Okay. कुछ आप लोग कर रहे हैं, कुछ ट्राई करें. आप लोग के वीडियोस अगेन ऑफ हैं सबके. सो अगर आप लोग करना चाहें तो थोड़ा सा ऑन करके कुछ काम शुरू करें. You'll have a better. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके पास एक सैम्पलिंग हो जाएगी काइंड ऑफ. आप उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकेंगे फिर, है ना. तो दिस इज आप उसको चाहें तो लिख भी सकते हैं. दिस इज स्टिपलिंग. आप जितना अगर इसको थोड़ा सा वाटरी करके लेंगे तो you'll get bigger drops, और बाद में वो ट्रांजी हो जाएंगे, थोड़ा सा उनका ट्रांसपेरेंट सा वो आ जाएगा. और थिक कलर्स में लेंगे तो इट विल गिव यू स्मॉल डॉट्स एंड एकदम उसका थिक आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा. This kind of things. Ma'am, you are taking dark colors, right? या अगर मैं बहुत लाइट कलर्स लूंगी तो शायद आपको विजिबल भी नहीं होगा कैमरे में, है ना.
तो अभी हम पहले हमेशा वैसे कलर्स, अगर आप पोस्टर कलर्स या वाटर कलर्स, एक्रिलिक कलर्स वगैरह ले रहे हैं तो स्टार्ट विद डार्कर टोन्स एंड उसके ऊपर फिर आप लाइटर Okay, टोन्स ले ma'am. सकते हैं। Okay. थोड़ा सा मैं डार्क इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को विजिबल रहेगा। मैं सिर्फ आपको एक स्टाइल बता रही हूँ, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं चीजों के, है ना। बस ये कि आपको ऐसा सीधा ब्रश करके ऐसे डॉट्स देना है। यू कैन Ma'am, क्रिएट I can सैंपल्स, आप actually see जितना। what you're doing. ओके, कैमरा में आई कांट ब्रिंग द कैमरा क्लोजर। हाँ, मैं शीट को ऊपर ले जा सकती हूँ, ये देखिए। कैन यू सी द डॉट्स? Ma'am, to the left a little, to the left. ओके, This side, this side, this side. दिस साइड। Still not visible, Okay. ma'am. बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है मैम। ओके, आई थिंक एकांश हो सकता है एकांश का मैम नेटवर्क कनेक्शन आपका पुअर हो। स्क्रीन, आप स्क्रीन रोटेट करें। Ekansh, you can pin that video. Pin that particular video. ठीक है, आई थिंक बस ये सिंपल डॉट्स लगा रही हूँ मैं। आई जस्ट शो यू। देखिए, मैं ऐसे खड़े करके ब्रश को लगा रही हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? साइड में जा यस रहा है, मैम। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? थोड़ा इधर। एक्चुअली आप शायद आपका स्क्रीन आप रोटेट कर लेना, उसको हॉरिजॉन्टल की जगह, लाइक वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर ले, तो यू विल हैव अ बिगर व्यू। मैम नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, ये तो थोड़ा सा इश्यू आ जाता है ऑनलाइन में, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा वहीं के वहीं। मैम दिख रहा है मैम, सही दिख रहा है। ओके, चलिए बिल्कुल आप। हाँ बिल्कुल, किसको नहीं दिख रहा? बिल्कुल सलोनी को। मैम जिसने मैं मोबाइल से ज्वाइन किया उन्हें नहीं दिख रहा मैम। ओके, वो आपका स्क्रीन भी छोटा हो जाता है एंड आपका वो प्लेसमेंट भी बिल्कुल छोटा सा है ना। हमको भी आप बहुत छोटे से दिख रहे हो है ना, तो थोड़ा सा ये इश्यू आता है, बट आई ट्राई कि मैं आखिरी में ही शीट का स्नैप शेयर कर दूंगी आप लोग के ग्रुप्स पे। मैम तो सेंटर आपको- में दिखा दीजिए ना, सेंटर में दिख जाएगा। आप ये ऐसे देखिए। साइड दिख रहा है तो आपका अभी हाथ साइड है, ये देखो आप। ठीक है, सलोनी For रोटेट those योर kids. फोन। हाँ, sir बोलिए. सलोनी हाँ, आपका फोन रोटेट करो। रोटेट योर स्क्रीन। एक्चुअली ऊपर जाके जो एक वो रोटेशन का ऑप्शन रहता है। Yes, ma'am. If I may interrupt, जिन स्टूडेंट्स को अभी नहीं दिख रहा है, I'll share the video recording with you guys. So because we all can see it, so you will be able to see the entire session again. Okay? यस मैम। I'm so sorry, मेरे यहाँ can you hear me all? यस मैम। ओके, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो मेरा मोबाइल डेटा से ये वाला कैमरा ऑन रहेगा, है ना। मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, Okay, no problem. तो I'll be doing my work and I'll increase the volume here so you can hear me. अगर लाइट आ जाएगी तो फिर मैं इसका वॉल्यूम बंद कर दूंगी, Okay. है ना। अब is it audible and I hope this sheet is visible? यस Yeah. मैम। I'm so sorry, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया है, तो जैसे ही आता है मैं वापस मोबाइल उससे लैपटॉप से कनेक्ट कर देती हूँ, है ना। तब तक हम इससे काम शुरू करते हैं आगे का। ओके, I'll just write here stippling, तो आप लोग को बाद में याद रहेगा कि ये कौन सा स्टाइल है। Okay? और इसके बाद स्टाइल होता है स्टम्पिंग। आप लोगों ने सुना स्टम्पिंग? Stumping is like something that you stump, you know, एक ऐसा जैसे हम फ्लैट ब्रश से स्टम्पिंग कर सकते हैं। आपने ट्रीज वगैरह बनाए हैं कभी विद फ्लैट ब्रश? सॉरी मैम। Sorry, ma'am. सॉरी फॉर व्हाट? मैम आई कांट हियर एक्चुअली व्हाट यू सेइंग। एक्चुअली यार आई कैन अंडरस्टैंड, अब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा कैमरा दूर है उस मोबाइल पे एंड आपको उसी के स्पीकर में सुनना पड़ेगा। I'll So try. please bear with me. Ruchi Ma'am, your ma'am, voice is breaking. Okay, okay. Fine?
इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो मेरा लैपटॉप फिर से कनेक्ट हो जाएगा, है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट. Ruchi, I can speak on your behalf. Yeah. So this technique is stippling. The earlier technique was stippling. This is scumbling. तो trees जो होते हैं, tree बनाने में ये काफ़ी useful रहता है. So you just hold the brush almost at 90 degrees to the paper, and this kind of texture can be created. So these are different and unusual brush strokes. नॉर्मली हम लोग बिल्कुल स्मूथ एप्लीकेशन करते हैं ब्रश की, तो या तो फ्लैट कलर लगा देते हैं या लाइंस बनाते हैं. बट व्हेन यू आर इनटू द फील्ड ऑफ आर्ट, one, you'll be encouraged to do a lot of experimentation, and two, there are already many experimentations that have been successfully done and they are very attractive. तो ये कुछ टेक्निक्स अभी रुचि मैम आपके साथ में शेयर कर रही है. You can also try along with her फ्लैट ब्रश लेके. तो पहली वाली टेक्निक राउंड ब्रश से थी, छोटे स्मॉल राउंड ब्रश, एंड द सेकेंड टेक्निक इज विद अराउंड size 4 flat brush. This is 7, but you can use any size flat brush में. Yeah. 4, 5, yeah. Your audio is back and it is good. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much for bearing with me. Actually, ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भरोसा ही नहीं रहता है. आप लोग को ये वाला समझ में आया? दिस इज स्टम्पिंग. इसमें हमने फ्लैट ब्रश, जैसे उसमें पॉइंट बना रहे थे विद राउंड ब्रश, इसमें हम फ्लैट ब्रश का जो इफेक्ट आएगा वो इस तरीके से. इसमें भी हम वेरिएशंस ला सकते हैं. लाइक अगर आप ड्राई यूज कर रहे हैं तो आपका अलग इफेक्ट आएगा. अगर आप वेट कलर्स लेके यूज कर रहे हैं तो अलग इफेक्ट आएगा. अब जैसे मैं ये जो यूज कर रही हूँ, ये मैं डायरेक्ट जो कलर की कंसिस्टेंसी है उसी को यूज कर रही हूँ. आई एम नॉट एडिंग एनी वाटर टू इट. ये देखिए, और उसको मैं हल्का सा एक रोटेशन सा दे रही हूँ, एक वहीं पे ट्विस्ट एंड टर्न कर रही हूँ. कैन यू सी द इफेक्ट? यस मैम. है ना, इससे आप क्लाउड्स वगैरह बहुत इजीली बना सकते हैं. ट्रीज का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है इस तरीके से. आई होप द शीट इज विजिबल. सलोनी, आपको दिख नहीं रहा था ना? अभी भी नहीं दिख रहा है हमको. Oh God. अरे चलिए फिर आप वीडियो देखिएगा बाद में. अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना. हमने फ्लैट ब्रश यूज किया है एंड उससे हम इफेक्ट्स दे रहे हैं. ठीक है, ये इस तरीके से ये ट्री का इफेक्ट हो गया. दिस इज स्टम्पिंग. अब इसमें अगर मैं वाटरी लेती हूँ, सपोज मैंने इसको पतला कर लिया, पानी मिला लिया उसमें, एंड यू नो हम इसको फिर ये देखिए, ये एक अलग इफेक्ट देता है. ठीक है, तो अब ये अपने ऊपर है हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको क्या बनाना है, क्या इंप्रेशन देना है हमको, इस तरीके से. ओके. यस मैम. ओके. आप लोग के पास स्टेंसिल कटर है, लाइक कुछ शार्प नाइफ वगैरह टाइप से? तो हम एक आपको स्टेंसिल सिखा देते हैं, तो एटलीस्ट इट विल बी लाइक समथिंग कि आपने कुछ यूज किया आज की क्लास को. या मैम. ओके. तो इसके बाद हम स्प्रे पेंटिंग करेंगे, तो उसके लिए आई विल बी शोइंग यू अ स्टेंसिल मेकिंग. हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, कुछ शीट्स या फिर थिक शीट्स हो हमारे पास.
तो लाइक मैंने एक सिंपल सा ट्री बनाया है यहाँ पे, कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ये मैं डबल स्टेंसिल बना रही हूँ, इसमें मैं लीव्स को इसमें कट करूंगी एंड दूसरे स्टेंसिल में मैं सिर्फ ट्रंक कट करूंगी, है ना? तो हाउ डू यू यूज इट? कुछ नीचे न्यूज़पेपर या कुछ थिक शीट्स लगाइएगा बिकॉज आपका कटर नीचे तक जाएगा। तो आई हैव टेकन दिस डिजाइन और सैंपल, यू कैन से दिख रहा है, देखिए सलोनी है इसमें, दिख रहा है आपको? ठीक है, ट्री ड्रॉ किया है सिंपल सा। Saloni, you can pin the video so that you will be able to see it on a larger screen. बाकी लोगों को दिख रहा है हो? Yes, ma'am, we can see it. Only we need to pin the video. Then we will be able to see it. ओके, ठीक है, आप पिन कर लीजिए सलोनी। आई होप आप फिर धीरे धीरे वैसे आप फ्रेंडली हो जाएंगे, डोंट यू वरी। अभी सबको ये सब चीजों की प्रॉब्लम जा रही है, पर आप जैसे जैसे अभी, बिकॉज ये कोविड ने हमको ये सब चीजें तो एटलीस्ट सिखाई दी है। ओके, चलिए अब मैं ना इसको कट कर रही हूँ। देखिए ये मैंने स्टेंसिल को पेन के स्टाइल में पकड़ा है एंड अच्छा प्रेस करना है उसको, हार्ड प्रेस ऑन माय सैंपल। जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी है उस पर मैं मेरा स्टेंसिल कटर यूज कर रही हूँ। ये मैंने कुछ लीव्स काट के भी रखी है, ये देखिए ये मेरी एक लीफ बाहर आ गई इसमें से, यहाँ पे एक लीफ का पैटर्न क्रिएट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हम लीव्स कट करते जाएंगे। आप लोग कर रहे हैं तो मैं धीरे धीरे करूं, आप लोग भी अगर कुछ बना रहे हो तो। मैम अभी हम ठीक से समझ लेते हैं मैम, देन आप जब वीडियो शेयर करोगे तो हम कर लेंगे मैम ऐसे। ठीक है, चलिए दिख रहा है बहुत इजीली आपकी वो सारी लीव्स उसमें से आ रही है और यहाँ पे आपका एक गैप सा क्रिएट हो रहा है ना? यस मैम। ओके, अगर आप इसको बहुत सफाई से निकालें तो आप इसको डबल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये अभी हम जो कर रहे हैं, दिस विल गिव यू अ इनर स्प्रे। जहां जहां हमारी लीव्स कट हुई है वहां पे जब हम स्प्रे करेंगे तो लीव्स का शेप ले लेगा। और अगर हम इसको आउटर स्प्रे करना चाहते हैं तो हम ये लीव्स अरेंज कर देंगे ऑन आवर शीट एंड उससे स्प्रे करेंगे तो लीव्स का पोर्शन रह जाएगा एंड उसके आसपास सब स्प्रे हो जाएगा। दैट विल गिव यू अ आउटर स्प्रे। तो फिर मैं इसको ज्यादा पूरा स्टेंसिल नहीं बनाती हूँ, आई जस्ट शो यू वन सैंपल, इससे आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये मेरे कुछ पुराने सैंपल्स हैं। कैन यू सी these patterns? यस मैम। यस मैम। ओके, दिस इज इनर स्प्रे। इसमें मैंने एक स्टेंसिल कट किया विच हैड दिस हैंडल एंड द बास्केट। ठीक है, जितने हम कलर्स यूज कर रहे हैं हमको उतने उसके सैंपल्स, उतने उसके स्टेंसिल्स बनाने पड़ेंगे, है ना? ये मैंने पिंक यूज किया है तो पिंक के साथ मैंने रेड यूज किया है यहाँ पे, तो उसको एक डार्कर टोन के साथ तो मैंने सिंगल सैंपल इसका बना लिया था एंड इसको फिर हमने स्प्रे किया। पहले ये रखा, ये हटा, तो ये कवर हो जाएगा। मैं आपको पहले दिखाती हूँ स्प्रे कैसे होता है। ये सैंपल से आपको समझ में आया इनर स्प्रे क्या होता है? यस मैम। ओके, इसके लिए मैं टूथब्रश यूज कर रही हूँ, उसको मैं कलर में डैप कर रही हूँ। ये जो मेरा इतना सा सैंपल है मैं इसी को आपको स्प्रे करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी जो लीव्स कटी है मेरी, मैं उनके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। मैंने मेरा थंब ऐसे प्रेस किया है ऑन द ब्रश, आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए ऐसे मैं उसको पुल करूंगी तो नीचे स्प्रे आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना सा? ये टूथब्रश है, इस पे कलर है एंड आई एम जस्ट ऐसे पुलिंग माय थंब ऑन इट, तो नीचे मेरा स्प्रे होता जा रहा है। यस मैम। आप इसको जितना फाइन करना चाहेंगे उसके लिए आपको थोड़ा थिक कलर यूज करना है। अगर वाटरी होगा तो नीचे आपको वो ब्लॉचेस देगा। तो टेक अ वेरी फाइन स्प्रे। आप ये कलर को ब्रश पे, ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पेंटिंग ब्रश से, या फिर आप एक फोम की शीट रख सकते हैं, उस पे आप कलर स्प्रे करेंगे। ये देखिए आपको दिखा ये स्प्रे आया है यहाँ पे? यस मैम।
है ना। तो जितनी हमारी लीव्स कट होंगी उतना ज्यादा हमारा पूरा ट्री बन जाएगा। अभी मैंने पूरा नहीं कट किया है, मेरा छोटा सा स्टेंसिल कंप्लीट हुआ था, तो ये हमें इस तरीके से स्प्रे मिला। और इसमें मैं सिर्फ लीव्स कट करूंगी, नेक्स्ट में हम सेम ट्रेस करके सिर्फ ट्रंक कट करेंगे। तो उनको जब जैसे आपने ब्लॉक प्रिंटिंग देखी है कभी? यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. ब्लॉक में कैसे डबल ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक रखते हैं फिर उसको हटा के दूसरा ब्लॉक का प्लेसमेंट इस तरीके से होता है कि जहां हमारा पहला ब्लॉक यूज हुआ है उस कलरिंग पार्ट को छोड़ के नेक्स्ट जगह पे हमारा ब्लॉक होता है। तो वो डबल कलर, 3 कलर्स, इस तरीके से उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। तो ये उसी तरीके से ये स्टेंसिल भी बनते हैं, है ना। दिस इज अगेन अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। वैसे स्प्रे पेंटिंग इज अ वेरी एंशिएंट आर्ट। आपने कभी केव पेंटिंग्स के सैंपल्स देखे प्री हिस्टोरिक टाइम्स के? यस मैम। यस मैम। तो आपने उसमें कभी देखे हैं वहां पे हाथ के छापे हैं, काइंड ऑफ इम्प्रेशंस हैं वहां पे हाथ के यस Yes, पेंटिंग। ma'am. तो वो कैसे Yes, होते ma'am. थे? वो लोग अपना हाथ रखते थे ना, और बोन्स के हॉलो में उसमें या जो भी उनका उस टाइम का चीजें होती थी, ब्लड होता था या कुछ ऐसी चीज होती थी, उसको वो फूक मार के स्प्रे करते थे। तो वो हाथ रह जाता था, आउटर स्प्रे हो जाता था। तो हैंड वाज देयर एंड वो बोन या जिससे भी वो स्प्रे, that was the tool that they used. So that is a very ancient art actually, spray painting, है ना। तो ये स्प्रे पेंटिंग था। इसके बाद हम इसमें हम बने बनाए स्टेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। हम नेचुरल भी यूज कर सकते हैं, लाइक इसमें मैंने फ्लावर्स रखे हैं, कैन यू सी दैट? ये मैंने इसमें फ्लावर्स रख के उस पर स्प्रे किया, दिस गिव मी एन आउटर स्प्रे। उसके बाहर हो गया। इसमें हम लीव्स रख के स्प्रे कर सकते हैं, हमारे पूरे शीट पे हम लीव्स अरेंज कर दें बहुत सारी, एंड देन उसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो यू विल गेट अ कंप्लीट पूरा शीट रेडी हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग एक्चुअली। इसके बाद हम एक नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं और किस टेक्निक के बारे में आपने सुना है? कौन सी और टेक्निक्स होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं पेंटिंग्स के लिए? मैम मैं पेंसिल स्केचिंग मेनली प्रेफर करता हूँ, तो मैंने सीखी थी मैम हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग, कॉन्टोर। ठीक है, तो ये स्टिपलिंग वही हो गया है ना, हम शेडिंग में Yes, यूज करते हैं डॉट्स देके। तो स्टम्पिंग भी वही है, स्टम्प्स भी आते हैं, रेडी स्टम्प्स आप लोग ने कभी यूज किए? No, ma'am. ओके, ऐसे Yes, ma'am. है ना, पेपर के रोल्स आते हैं एकदम टाइट रोल्स, उससे आप Yes, ma'am. Blender. Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. उससे आप Yes, ma'am. स्मजिंग वगैरह करते हैं, तो वो Yes, स्टम्पिंग। ma'am. चारकोल किस पे शेड करने के लिए होता है वो। हाँ, Yes, ma'am. Blending मैम stump एक्चुअली मैंने 11th 12th में फाइन आर्ट ही लिया था, ओके गुड, वो पता है मेरे को। ओके गुड। तो फिर आप मुझे कुछ और टेक्निक्स बताओ, शांभवी, है ना, शांभवी ना? यस मैम। ओके, मैम मतलब यादव सर हमारे टीचर रहे हैं, चंदन यादव सर, तो उनसे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हुई हैं। मतलब शेडिंग करना वही सब भी सीखा है ज़्यादा, और Okay. वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही ज़्यादा बताते थे, हिस्ट्री पढ़ी है इसके बारे में, वही सब है। ओके गुड, तब आपको यहाँ पे और ज्यादा मजा आएगा मतलब। यस मैम। ओके, तो इसमें आप कुछ और टेक्निक्स नहीं बता पा रहे हैं मुझे? जैसे ये तो हमने 3-4 टेक्निक्स हुई, और क्या होती है बताएं? मार्बलिंग होती है, और आप और किस चीज से पेंटिंग कर सकते हैं? सिंपल से हमारे हाथ, फिंगर्स, थंब, हैंड्स, ये हमारे पास सारे टूल्स हैं, है ना। नेल्स भी यूज करते हैं कई लोग उसमें इंप्रेशंस देने के लिए, टेक्सचर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप के और टेक्निक्स होते हैं बेसिकली, लाइक यूज कर सकते हैं ना, हाँ, फॉक्स, आई बेग योर पार्डन, फॉक्स, फोक, ओके, हाँ, फोक यूज कर सकते हैं, नाइफ्स यूज कर सकते हैं। चलिए, अब आपने याद दिला, तो हम एक ब्लेड पेंटिंग बताऊंगी मैं आप लोगों को। Yes, ma'am. ये मेरा एक ब्रश है ना, इसके मैंने बैक में एक ये रेजर, मेरे पास वो वाली रेजर नहीं थी, अदरवाइज वो जो शेविंग रेजर आती है पहले जो यूज होती थी, वो उसको आप बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो वो आप इसमें पीछे ब्रश के पीछे फंसा सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? आई होप ये विजिबल है। ये टिप देखो इसका, ये मैंने ब्रश को ये एक्चुअली मैंने स्टेंसिल कटर का एक ब्लेड तोड़ के लगाया इसमें, दिख रहा है आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yeah, so ma'am. this will also be a very good tool for your painting.
इसमें थोड़ा थिक कलर यूज करना पड़ेगा हमको, ताकि हमारा ये ब्लेड उस चीज को ले ले। तो ये मैंने डिप किया मेरी ब्लेड को, एंड मैंने ये टेक्सचर, ये मेरी ब्लेड में कट है, सो आई विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ। अभी मैं अपना कितना थिक यूज करना चाहूंगी, कितना आगे तक उसको लेके जाना चाहूंगी। आपको दिख रहा है? आई होप इट विजिबल है। यस मैम। आपको वो इफेक्ट दिख रहा है जो ब्लेड से आ रहा है मेरा? ओके, मेरा ब्लेड ही निकल गया। You have to careful with these things actually, हाँ, थोड़ा ध्यान से करना होता है। ये ब्लेड कैसे फिक्स होता है? ब्रश पे ग्रूव होता है ब्रश में बैक साइड से? थोड़ा सा वो ब्रश का सॉफ्ट होता है वुड ना, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं कट जैसा करके। ब्लेड में अपने आप में धार होती है, तो वो उसके अंदर बस मैंने फंसा दिया। देखो अभी निकल भी गया। तो यू कैन लुक, ये बस ये देखिए, ये वापस लगा दिया। अब की बार मैंने उसको वर्टिकल था पहले, अभी हॉरिजॉन्टल कर दिया है, तो आई विल गेट अ डिफरेंट इंप्रेशन। ये देखिए अब मेरे को ना एक ब्रॉडर इंप्रेशन मिल रहा है। दिखा आप लोग को? यस मैम। बस ये हमको इस तरीके से चलाना है। अब आप उसको चाहे तो कर्व में चला लें, आप उसको चाहे तो स्ट्रेट में चला लें। यू ऑल्सो कैन होल्ड ब्लेड, होल ब्लेड को भी आप होल्ड करके और उसके पार्ट से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, इस ब्लेड में थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो आपको थोड़ा ये सेफ्टी करेगा। ये वाली जो टेक्निक हाँ, ये सेफ हो गया। उसमें थोड़ा सा टेक्निक को क्या बोलते हैं? ब्लेड पेंटिंग। इट्स आल्सो कैलीग्राफी स्टाइल। हाँ, आप इसको कैलीग्राफी के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लेटरिंग करने के लिए आप उसको यूज करेंगे, तो ये देखिए जो आप चाहेंगे। मैं डबल टोन आ रहा है जैसे मेरे ब्लेड पे। ये देखिए, है ना? तो ये आपका एक लेटर क्रिएट हो गया, और ये बहुत सेफ भी हो गया। और आप इसको वेरिएशंस भी दे सकते हैं, थिक ब्लेड, छोटी ब्लेड, तो आपको जैसा इंप्रेशन चाहिए वैसे आपकी ये यूज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या लें? एक थ्रेड पुलिंग के बारे में देखा होगा आपने? यस मैम। है ना, इजी है। तो फिर वो नहीं ले, कुछ और ले। करके दिखाओ। आपकी मर्जी। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है? यस मैम। दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू टेक्निक्स। एक्चुअली इतने से टाइम में हम बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं ले पाएंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एक इंट्रोडक्शन कि आप नेक्स्ट अपने वेरिएशंस उसमें क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल एंकर की थ्रेड है ना, वो 6 लच्ची वाला जो थ्रेड आता है, एक वो थ्रेड है। एंड उसको मैंने एक रफली बस इसमें किया डिप मेरे कलर में। मैम ये पोस्टर कलर से भी हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, पोस्टर कलर्स, वाटर कलर्स, है ना? ओके मैम। कोई भी मीडियम आप यूज कर सकते हैं। यस मैम। इवन ऑयल पेंट्स भी हो सकते हैं, इनामल पेंट्स भी हो सकते हैं, बस उसके मीडियम्स चेंज हो जाएंगे। ये वाटर बेस्ड है, वो थोड़ा सा ऑयल बेस्ड या उस तरीके से थिनर वगैरह यूज करके आपको करना पड़ेगा। ये मैंने एक थ्रेड लिया एंड आई विल जस्ट प्लेस इट लाइक, कुछ एक इंप्रेशन क्रिएट कर दूंगी मैं यहाँ पे। मैंने मेरी एक शीट को हाफ फोल्ड किया है ना, सो दैट आई कैन गेट समथिंग ऑन इट, उसको पुल करने के लिए। ये मैंने एक प्लेसमेंट किया था यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा टाइटली होल्ड करूंगी एंड जस्ट आई विल पुल इट फ्रॉम वन साइड। एक मैंने उसका एक एंड बाहर रख लिया था थ्रेड का, ताकि मैं उसको खींच सकूं। देखिए कैसा इंप्रेशन आया है। दिस दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। ओके, ये मेरा सेंटर लाइन पैटर्न काइंड ऑफ क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको चाहूं कि मुझे दोनों तरफ नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, तो मैं थ्रेड रखूंगी एंड दूसरी एक्स्ट्रा शीट रख के उसको पुल कर लूंगी, तो आई विल गेट अ सिंगल पैटर्न ऑन माय शीट, है ना? ये मेरा एक सेंटर लाइन पैटर्न क्रिएट हो गया। ओके, ये एक थ्रेड पुलिंग था। थ्रेड्स के हम बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टिक है मेरे पास, अब इसमें मैं थ्रेड को अगर
कुछ अलग तरीके से उस पे रोल कर दूं, कुछ रैप कर दूं उसके ऊपर। अभी तो मैं स्टिक नहीं कर रहा है, पर अगर आप इसको स्टिक करेंगे तो विल गेट अ डिफरेंट इंप्रेशन, और वो आपका एक काइंड ऑफ रीयूजेबल आपका स्टेंसिल जैसा क्रिएट हो जाएगा। इसमें अभी ये देखिए आया एक इफेक्ट आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। है ना, एक वो लाइंस आ गए। इसको मैं क्रिस क्रॉस भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको डबल लाइन रैप कर देती तो इसमें फिर अगेन एक नया पैटर्न क्रिएट हो जाता। कहीं मैं इसको थिन लाइंस, थिन रैपिंग दे सकती हूँ, कहीं ब्रॉड रैपिंग्स दे सकती हूँ, तो वो हमारे अलग अलग इंप्रेशंस क्रिएट करेंगे। अब बड़ी स्टिक लेके आप पूरा कैनवस एक बार में ले सकते हैं। ये रोलर जैसा भी हो गया, जो मार्केट में रेडीमेड रोलर्स भी मिलते हैं, उनपे भी कुछ होते हैं कई बार ना, किसी में कुछ एनग्रेव्ड होता है या किसी में कुछ एम्बॉस्ड होता है, तो वो अलग अलग इंप्रेशंस देते हैं। उसी तरीके से ये मेरा हैंडमेड काइंड ऑफ रोलर क्रिएट कर लिया मैंने। दिस विल गिव यू डिफरेंट टेक्सचर्स, आपके वेरिएशंस आप जो इसे रैप करने में यूज करेंगे। अब अगर आप इसमें और थिक थ्रेड यूज करेंगे तो उसका और बोल्ड लाइंस मिलेगी आपको। So this will give you different textures to your sheets. इसके बाद हम एक लेते हैं, मैम आप बताएं, अनु मैम क्या लेना चाहिए और इसके आगे? अभी कितना टाइम है हमारे पास? You can take another 15 minutes if you like. बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है तो आई कैन कंटिन्यू। यस मैम। टेक्निक्स यस मैम। थैंक यू। किसी ने वेजिटेबल लेके रखा हुआ है अपने पास? आलू Yes, की ma'am. बात करें थोड़ी सी? यस मैम। ओके, आप लोग कुछ ट्राई कीजिए। एक्चुअली वो बाद में करने में क्या होता है कि आप ठीक है सीखने के बाद करेंगे तो बेटर होगा, बट कुछ अभी आपको पता होगी कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अभी हाथों हाथ डिस्कस कर सकेंगे चीजों को, है ना। ये मैंने एक आलू लिया है, थोड़ा हम शेप देख सकते हैं कि हमको कैसा चाहिए ब्लॉक्स। अब मैं इसमें ना क्या शेप बनाऊं, कुछ ज्योमेट्रिकल मोटिव्स लेते हैं, या फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई सजेशन है किसी का? I think geometrical is good. ओके, तो आई एम टेकिंग लाइक हाफ पोटैटो, उसको मैंने बीच में से कट करा है। इतना रखें उसको कि आप पीछे से होल्ड कर सके, पकड़ने के लिए आपके पास ग्रिप होनी चाहिए उसमें, है ना। एंड ये मैंने फ्लैट कट करा है, उसको जितना आप फ्लैट करेंगे आपका उतना ब्लॉक में फिनिशिंग आएगा। और अब इसको भी अगेन हम कार्विंग कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है आप कितनी उसमें फिनिशिंग दे रहे हैं, क्या क्या आप डिटेलिंग दे रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मोटिव बोला ना मैम ने, तो ठीक है हम एक डायमंड शेप ड्रॉ कर लेते हैं इस पे। सिंपल सा रेक्टेंगल है, उसको मैंने डबल लाइन ली। ओके, तो अब मुझे ये स्क्वायर रखना है, तो मैं उसका एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल दूंगी, बट वो मैं पूरा नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना निकाल रही हूँ कि यहाँ पे मेरे को एक ये डिफरेंस आ गया मेरी हाइट। इस केस में दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ये मैंने एक निकाल दिया। ओके, बेटा you all need to participate actively. अभी आप क्या passive participation कर रहे हो, अभी आप सिर्फ देख रहे हो। Now आपको देख के उतनी चीजें याद नहीं रहेगी। हाँ, हाँ, आप जैसा डेमो देख रहे हो, pick up your tools and start. आपको डिफिकल्टीज भी पता चलेगी, आप हाथों हाथ पूछ भी सकोगे, और आपके पास एक बार कुछ स्टार्ट किया हुआ रहेगा तो you'll have like एक इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ मुझे आज इसको कंप्लीट करके कुछ नया ट्राई करना है। ये मेरा एक स्क्वायर कट गया, आपको दिख रहा है? यस मैम। अब मैं उसको एक सेकेंड कट और दे दूं तो I'll get a rectangle, diamond shape format। और इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे खुरचना पड़ेगा so that I get a hollow space there।
ये तो हम बना रहे हैं, बट बाकी आपने कभी बच्चों को भी करते हुए देखा होगा, लेडी फिंगर से इंप्रेशंस देते हैं। करी है वेजिटेबल ब्लॉक प्रिंटिंग कभी किसी ने, या कुछ आइडिया है इसका? मैम आइडिया है बट करा नहीं है। ओके ठीक है। लेडी फिंगर्स के बहुत अच्छे इंप्रेशंस आते हैं। इवन कैप्सिकम को जब आप हाफ कट करके लेते हैं तो उसके अच्छे आपको टेक्सचर्स मिलते हैं। कैबेज के भी इंप्रेशंस अच्छे आते हैं। ये मेरा एक ब्लॉग बन गया है, बहुत सिंपल ब्लॉग है, बट हमने एक बार ट्रायल के लिए ये ब्लॉग ट्राई किया है। अब मैं इसको कलर में डिप करूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेडीमेड ब्लॉक्स भी आते हैं जो फैब्रिक पेंटिंग वगैरह में यूज होते हैं, आप लोग ने देखे कभी यूज करें? मैम देखे मैम, यूज नहीं किए। ओके। पोटैटो ना वाटरी होता है, जैसे अब हमने इसको कट किया तो इसमें से थोड़ा सा वाटर सा यूज हो रहा है, बाहर आ रहा है इसका पानी, तो हमको उसको थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा ताकि हमारा कलर और पतला नहीं हो। यस मैम। ये देखिए आप लोग को दिख रहा है मेरा ब्लॉक जहाँ कलर लगा है ना? यस मैम। और ये मैंने इसका एक सिंपल सा ये ब्लॉक आ गया, दिख रहा है? एक बार की अगर आप मेहनत करते हैं हमारा ब्लॉक रेडी हो जाता है, तो आपको इसके बहुत सारे इंप्रेशंस आप बना सकें। देखा आपने, एक पैटर्न क्रिएट हो गया, दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो दिस वाज, हमने पोटैटो कार्विंग करी, जिसको एक स्टेंसिल का फॉर्म दिया, एक ब्लॉक का फॉर्म दिया, एंड ये हमारा एक उससे पैटर्न क्रिएट करा। आप इसमें n नंबर ऑफ डिटेलिंग देके ब्लॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, रेडी इंस्टेंट ब्लॉक्स जो हम यूज कर सकते हैं। लीव्स, ये भी हमारा एक इंप्रेशन दे सकता है हर चीज का। लीफ इंप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं। आप कुछ कैप्स यूज कर सकते हैं। यस मैम, लीव्स से मैंने स्कूल प्रोजेक्ट में किया था एक प्रोजेक्ट। ओके, है ना, ये सब रेडीमेड ब्लॉक्स हैं। यस मैम। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज उठा के ब्लॉक बना रहे हैं उसका। ये देखिए, ये राउंड्स बना दिए मैंने एक कैप यूज करके, है ना? और किसी चीज का कैप हो सकता है जिसको कि आप, या फिर ये ब्रश का बैक हो गया, उससे भी मैं इंप्रेशंस क्रिएट कर सकती हूँ। ये दिख रहे हैं डॉट्स आप लोगों को? दिख रहे हैं? ये सब हमारे रेडीमेड ब्लॉक्स हो गए। क्या बात है, किसी की वीडियो ऑन नहीं है, मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है, किसी की आवाज भी नहीं आ रही है। किसी ने लंच किया है कि नहीं, या सब सो गए? मैम हम लोग देख रहे ध्यान से। हाँ, कुछ बोला आपने? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, पर अगर आप खुद भी बनाएंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और उसमें आप कुछ क्रिएट कर सकेंगे। आई थिंक शांतनु कुछ बना रहे हैं। हाँ मैम, मैं भी स्टार्टिंग में आपने जो बताया था उस पर ही काम कर। तो कुछ शेयर करो, दिखाओ हमें आपकी शीट। ओके, गुड, बहुत सुंदर ट्री क्रिएट हुई है आपकी। आपने बताया था स्टार्टिंग में जो दो स्ट्रोक्स वो यूज करके बनाया मैंने। ओके, गुड। बाकी लोगों का भी कुछ दिखाएं। वैष्णवी ने भी दिखाए सारे इंप्रेशंस। यस,
तो मैंने जो आई बहुत सुंदर वो स्ट्रोक्स मैम ने जो बताया था ना स्टार्टिंग में, वो बेन स्ट्रोक साथ था, तो मैं वो स्ट्रोक्स यूज કરીને कट बनी दी बैठी में। किसी ने कुछ मिस किया हो तो मैं रिपीट करूं, हमने कौन कौन सी टेक्निक सीखी आज? मैम ब्लेड पेंटिंग आप रिपीट कर सकते हो? या श्योर। मेरा ब्लेड कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। ये रहा। ये मैंने स्टेंसिल कटर की ब्लेड ली है। ये वाली ब्लेड्स होती है ना, ये सब, ये देखिए, ये दिख रही है आई थिंक, है ना? और हमारा जो स्टेंसिल कटर होता है उसके पीछे एक उसमें छोटा सा कट होता है। आई होप ये तो पता होगा, आप लोगों ने यूज किया होगा कभी इसको, यस मैम। है ना? तो इसको मैं उस कट करके एक उसका एक एज निकाल रही हूँ पीस। इसके साथ यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, ये सब चीजें बहुत रिस्की हो जाती कभी। ये देखो, ये मैंने ब्लेड का एक पीस ले लिया, है ना? आई होप ये विजिबल है, यहाँ रखा इधर, ठीक है बस। और ये मैंने ब्रश के पीछे की डंडी में, ये ब्रश है हमारा, उसके पीछे मैंने इसको फंसा दिया। तो जो पॉइंटेड वाला साइड है, एक बार उसको हम अंदर डालेंगे जिस साइड हमारी शार्पनेस होती है, तो उससे एक थोड़ा सा हमको कट मिल जाएगा ब्रश में। ब्रशेस सॉफ्ट होते हैं तो आप उसके अंदर प्रिक कर सकते हैं। ये एक बार हमने फिक्स कर लिया और उसके बाद में इसको दूसरे साइड से, क्योंकि मुझे शार्प एज मुझे चाहिए ताकि मेरे उसके शार्प इंप्रेशंस आए। इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करके उसमें फंसाना होता है, ठीक है? और ये फंसा के इस तरीके से मेरा ये ब्रश तैयार हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, दिख रहा है। ओके, प्लीज बेयर विथ मी, आज मेरी आवाज की बिल्कुल बैंड बजी हुई है ना? तो ये, और मैं कलर ले रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा थिक कलर यूज कर रही हूँ। ये एक्रिलिक कलर्स हैं मेरे, आप इसको पोस्टर कलर्स में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, इनफैक्ट उसमें भी बहुत कंफर्टेबल है ये वाली चीज। ये मैंने ब्लेड को डिप किया मेरे कलर में एंड उसको बस पुल करना है मुझे। दिख रहे हैं इंप्रेशंस? यस मैम। ओके, बस इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, कलर वेरिएशंस करके, उसकी ब्रेथ, उसकी विड्थ एडजस्ट करके, कम ज्यादा करके आप इसको इस तरीके से इंप्रेशंस दे सकते हैं। ये ऑयल, मैं आपको इसकी एक शीट दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा नहीं लगता है पास। ये मेरा ऑयल में बना हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? यस मैम, इट्स वेरी प्रिटी। ओके, ये पूरा ब्लेड से बनाया है ना? एक बैकग्राउंड पहले दिया बेस के लिए, एंड देन उसके बाद डिफरेंट ग्रीन्स एंड ब्राउन्स लेके ये एक पैटर्न क्रिएट किया है। इसमें मेसी पेंटिंग्स के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस तो हाँ चाहिए, बट आप प्रैक्टिस भी है, आप जितना रियाज वाली बात है, जितना रियाज करेंगे, जितना करेंगे उतना आपके उसमें, और ये सब चीजें एक्सप्लोर करने की होती है एक्चुअली। आप जितने डिफरेंट आर्टिस्ट को देखिए, बड़े ग्रेट आर्टिस्ट को फॉलो कीजिए, उनकी चीजें ट्राई कीजिए। अब मैं ये कह रही हूँ, जैसे अनु मैम ने भी अभी बोला ना कि आप लोग अगर साथ में करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ देख के आप सोचेंगे कि मैं बाद में करूं, अभी अच्छे से सीख लूं फिर करूंगी, तो वो नहीं होता है। अगर साथ साथ में करेंगे तो आपको उसकी डिफिकल्टीज पता चलेगी, आपको उसमें अपने वेरिएशंस मिलेंगे करने के। तो हमेशा साथ में काम करें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है। आपके पास कुछ सैंपल्स रेडी होंगे ना, तो आप उसको फिर और एक्सप्लोर करोगे, नहीं तो आधी चीज तो सिर के ऊपर से निकल जाती है ना? इसमें मैंने यहाँ पे दो ये क्रिएट किए, दिख रहे हैं ज़ीब्रा टाइप्स। यस मैम। काइंड ऑफ पेपर कोलाज भी कर लिया मैंने इसमें।
तो ये दो तरीके की मैंने टेक्निक्स यूज कर ली इसमें। तो एक ये सैंपल है, एक मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ। अभी जैसे हमने स्टेंसिल काटा ना, ये स्टेंसिल दिख रहा है, इसमें मैंने देखिए 2 बर्ड्स ड्रॉ करी हुई, क्रेन ड्रॉ करी हुई। वाओ मैम। तो ये जितना फाइन आप कटिंग करेंगे उतना आपका बहुत प्यारे प्यारे स्टेंसिल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कि स्टेंसिल क्रिएट किया है, दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। ओके, क्या मैम? और ये स्टेंसिल से मैंने एक बहुत लाइट है, आई थिंक आपको दिख जाएगा वैसे तो, एक पैटर्न क्रिएट किया, दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। ओके, बाहर मैंने पूरा स्प्रे किया है इसमें ये स्टेंसिल कट करके, है ना। तो ये जो मेरा इसमें से जो मेरे स्टेंसिल्स निकले थे, ये जो क्रेन निकला था यहाँ से बाहर, उसको मैंने इस पे रखा, है ना। तो ये मेरा आउटर स्प्रे का स्टेंसिल तैयार किया था मैंने, और ये वाली जो शीट मैंने अच्छे से काट के करी रेडी, तो ये मेरा इनर स्टेंसिल तैयार हो गया। अब मैं इसमें यहाँ स्प्रे करूंगी, तो यहाँ जो स्प्रे होगा दैट विल बी इनर स्प्रे, एंड ये सैंपल इसका जो बना है ये आउटर स्प्रे। ओके, तो आप एक ही पैटर्न से 2 स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड ये आपके रीयूजेबल काइंड ऑफ स्टेंसिल्स हैं। अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप इस पे ना वार्निश का हाथ लगा दें, तो आपकी शीट वाटरप्रूफ भी हो जाएगी और रीयूजेबल भी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने स्टेंसिल्स को आगे तक। रिपीट अगेन। हाँ, क्या बेटा? मैम वो आपने क्या बोला वाटरप्रूफ शीट के लिए? वार्निश की कोटिंग कर दें आप इस पे। ओके ओके। वैक्स की कोटिंग भी कर सकते हैं, वैक्स को गर्म करके ब्रश से आप इसको स्प्रेड कर दें इसके ऊपर, तो ये आपका एक काइंड ऑफ परमानेंट स्टेंसिल, रीयूजेबल स्टेंसिल बन जाएगा। ओके, यस मैम। मैम इस पे कुछ फिक्सेटिव स्प्रेज नहीं आते क्या मैम इसके लिए? क्या नहीं आते? फिक्सेटिव स्प्रेज आते हैं ना मैम? स्प्रे। हाँ, ये मैं आपको इजीएस्ट चीजें बता रही हूँ आपको, लाइक जो इजीली अवेलेबल है। आप एक मोमबत्ती को पिघला लो एंड उसको यूज कर लो, तो आपका अलग से कुछ आपको चीजें नहीं लानी पड़ेगी ना इस हिसाब से। अदरवाइज मार्केट में बहुत चीजें अवेलेबल है, इनफैक्ट रेडीमेड स्टेंसिल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट अगर आप पर्सनल अपना कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं दैट विल बी लाइक आपका कुछ इनोवेटिव वो होगा। यस मैम। है ना। एक ये और सैंपल है, ये पेपर कोलाज एंड पेंटिंग यूज करके बनाया हुआ है, एंड कुछ ब्रश के इफेक्ट्स दिए हुए हैं ऐसे राउंड राउंड घुमा के, तो कुछ टेक्सचर्स क्रिएट किए हुए वेव्स के, दिख रहे हैं आप लोग को? यस मैम। ओके, इसमें मैंने ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू। ये मेरे बहुत पुराने शीट्स हैं, लाइक 30 इयर्स बैक एक्चुअली, जब मैं कर रही थी ये सारी चीजें। बट मैम लग ऐसा है कि अभी आपने रिसेंटली ड्रॉ किया है। हाँ Ma'am, can you show it to the other camera? other camera also, okay. Yeah, like this one. दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। इसमें मैंने बोट्स का और जो ह्यूमन फिगर्स हैं उसमें कोलाज किया है। बाकी हाँ, रुक जा, 1 मिनट आ रही हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। ओके, ये दिख रहा है आप लोग को? तो ये बोट एंड ह्यूमन फिगर्स मैंने कोलाज में किए हैं, बाकी पेंटिंग्स हैं विद डिफरेंट टेक्सचर्स, ब्रश के यूजेस हैं अलग अलग। ठीक है, ओके, चलिए और कुछ बताऊं? और आई थिंक मैम, अनु मैम, Yeah, it was a great session. I'm sure अब स्टूडेंट्स सब इंस्पायर्ड हैं और आज कुछ एक टेक्निक जरूर आप ट्राई करो। I think the blade technique is actually very very fabulous. Okay. Right? So all the students जिन्होंने आज डेमो देखा है, वो अब आपके पास सब मटेरियल अभी है ही आसपास अपने, तो try to work on this technique. So we will see the completed work tomorrow in class. आपका टाइम टेबल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, अलका मैम विल शेयर इट. So tomorrow onwards we'll see you online. And I hope आप लोग अपनी एनर्जी और enthusiasm बढ़िया एकदम मेंटेन करके कल ज्वाइन करेंगे. कल से let's start studying. Yes ma'am. Okay. So thank you Ruchi ma'am for joining us, for sharing your experiences, your wonderful paintings. I'm sure the students will invite you again
तो आप और स्टूडेंट्स को इंस्पायर कीजिएगा टू एक्सपेरिमेंट. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग arena of fine arts. So with this, we'll conclude today's session. See you all Thank you, tomorrow. ma'am. Keep in touch with all of us on Thank you, WhatsApp. students. Thank you so much. I hope you all enjoyed this introduction to various techniques. Yes, ma'am. And I'm also looking forward to have more samples and some creative innovations from yourself. Sure, ma'am. आपको जल्दी इसमें से कुछ टेक्निक्स दिखाएंगे मैम को. चलिए. So Yes, ma'am, let's then. log off now. Okay, thank you. Okay, see you guys Okay. tomorrow. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Have a nice day, everyone. Same to you, ma'am. Thank you. Thank you.